Hi guys, welcome. आई नो पिछले 2 संडे स्किप हो गए बट लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट कम बट हियर आई एम. वेलकम टू द संडे एक्टर्स लाइव. This is basically to answer all your questions that you keep sending me in DMs. Yeah, so let's get to it. Hello. Hi guys, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Starting a new business. Oh, that's nice. Which business is that? By the way, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ. Sorry, 1 second. शाम, आप ये निकाल दोगे. मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि yes, there are stupid questions. There definitely are stupid questions and everybody who's sending me DMs about casting वालों के नंबर भेज दो. I'm sorry but that's a stupid question. ये इस DM का रिप्लाई ना मैं करूंगी ना और कोई करेगा, स्पेशली अगर वो आपको नहीं जानता है तो. Because okay, the most controversial topic was कि ठीक है, if you want to help actors, why don't you give out numbers? That's because इवेंचुअली मुझे काम देने वाले कास्टिंग वाले ही लोग हैं जो मुझे पसंद भी हैं. आप समझो, मुझे नहीं पता आप स्टॉकर हो, आप एक्टर हो भी या नहीं हो, आप सीरियस हो या नहीं हो, आप उनको स्पैम करोगे, आप उन्हें दिन में 100 में, आई डोंट नो. सो बिफोर दे स्टार्ट हेटिंग मी आई हैव टू काइंड ऑफ प्रिवेंट this from happening and protect their privacy also. So just letting you know. Yeah. Hi Tripti. Hello. Hi Srichana Raz. I'm sorry, it's very difficult to pronounce the titles and the names. I'm sorry. Hi. Can you tell us top 3 acting workshops you did? Okay. So in acting workshops, I've only done 2 workshops and एक था The Actor's Truth जो मैंने honestly lockdown में की थी. So it was online. So it was very reasonable for me because the course was 10,000 for 10 days and I did it for 20 days. So now I think the fee is somewhere around 1 lakh, which according to me is a little too much for me right now personally. I don't know, like people who can afford it, it's great, but it was a great workshop. मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. Second, I've never really done a workshop, but I was doing classes with the theatre company here. The experience was a little bad, so I don't like in terms of not with the classes. The classes were great, but some controversy happened with that, so I don't want to mention the company. But वहाँ पे रिहर्सल्स होते थे और कुछ गेस्ट फैकल्टीज आते थे जो मुझे अच्छे लगते थे. बट अपार्ट फ्रॉम दीज आई हैव नेवर डन रियली लाइक एक्टिंग वर्कशॉप्स. थैंक यू सो मच. हाय, लव बैक टू नेपाल एंड इजराइल. हेलो मैम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सुरेंद्र जी, हाय, हाउ आर यू? इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे डीएम में. आई थिंक पीपल नीड टू स्टार्ट I need to be more consistent for them to know कि this is the place to ask your questions instead of DMs. Come on. But anyway, I did upload a video today. I don't know if you've seen it or not, but I got kind of a lot of love for it. Thank you for that. Hi Chavi. Hello, how are you? तो उसमें ये मैंने बताया था कि पिछले 7 महीने में बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ, बट बहुत कुछ बहुत सारे दिन बहुत सैड भी थे. फीलिंग फिर भी आ रही थी ऑफ गिविंग अप, even though I'm here right now. Like there has been a journey of 10-12 years that has gone into acting, but I still feel like giving up. Somebody asked me ki why do you want to give up? I mean, nobody willingly wants to give up. बहुत सारी चीजें होती हैं. जब आपके सपने पूरे होने लगते हैं तो वो सपने भी बड़े होने लगते हैं. जैसे पहले टीवी पे आना सपना था क्योंकि सिर्फ फेम चाहिए था. फिर 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख पैसे ज्यादा चाहिए थे उन एड्स के लिए क्योंकि पैसा चाहिए था. लेटर
जब आप इतने साल दे देते हो आपको समझ में आता है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या. मुझे एज एन एक्टर अपने आप में कुछ नया फाइंड करना है हर प्रोजेक्ट में. अगर मेरे लिए प्रोजेक्ट एक्साइटिंग है या कहानी मीनिंगफुल है, वो चीजें अब मैं करना चाहती हूँ. तो मेरे ड्रीम्स बड़े होते जा रहे हैं. एंड सैडली दिस वॉज द थर्ड टाइम दैट आई गॉट लॉक्ड फॉर अ mainstream theatrical feature film as one of the primary characters, and then got unlocked after 2 days because they apparently changed the character. So things happen to you. I mean, and this was the third time. Sometimes you feel really like a small tip can throw you over something. तो ऐसी चीजें होती हैं, कोई willingly नहीं करना चाहता, but you have to, you know, kind of remind yourself of good things and come out of it. Okay. Thank you. I'm so beautiful. Thank you. Where do you live, ma'am? I live in Bombay. Hi, watching from. I don't know what this means. Is it IUD, LUD? How do you evolve as an actor even after very little workshops? So, I read a lot of books. I realized I became a better actor with every audition. I honestly am kind of an instinctive actor. मैं बहुत ज़्यादा प्रेप वैसे भी नहीं करती हूँ. इमोशंस काइंड ऑफ कम नेचुरली टू मी, एंड मैं अपने इमोशंस को समझने के लिए ऑन अ डेली बेसिस बहुत मेहनत करती हूँ. लाइक आई डू जर्नलिंग, आई डू मेडिटेशन, आई डू इवेल्युएशंस, आई ट्राई टू क्रिएट जॉय एवरी डे. अगर मैं सैड भी होती हूँ तो फिर मैं बहुत सैड भी होती हूँ. तो क्योंकि मैं अपने इमोशंस को समझती हूँ तो उन इमोशंस में मैं टैप कर पाती हूँ. Plus, I also I kind of keep creating things. I write stories that we shoot. I write short films. I've written a microdrama. I've written like scene works. I do scene works with friends. ये सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिस में रहती हूँ, और मैं डेली बेसिस पे बाकी सब चीज़ों का रियाज करती हूँ, अपने फेस का, वॉइस का, बॉडी का. तो आई थिंक दैट कीप्स यू बिकमिंग बेटर एवरी डे. Heidi watching from Ludhiana. Oh, hi. What do you suggest that an actor should have a backup option? Depends on what you want the backup for. Do you want it for income because you want to be an actor in the long run? That works. You figure out a way of earning money ताकि आप acting को बहुत लंबे समय तक continue कर पाओ. But अगर आप सोचो acting नहीं हुई तो कुछ और कर लूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि आप acting नहीं कर पाएंगे. मैम मुझे भी टीवी मूवीज़ में काम करना है मैम. एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल जाऊँ या थिएटर ज्वाइन करूँ? ओके, एक्टिंग स्कूल किस तरीके का एक्टिंग स्कूल? जैसे फॉर एग्जांपल NSD, FTI, ये सारे जो FTI आई एम नॉट श्योर ऑफ, NSD आई नो कि ये आपको सिर्फ एक्टिंग की चीज़ें नहीं सिखाते थे, ये आपको सब कुछ सिखाते थे. लाइक थिएटर, डिज़ाइन, लाइटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, ऑल ऑफ इट. And eventually all of it helps you become a better actor, but I don't know if you want to give 5 years learning all of it if you want to be an actor. बाकी कौन से एक्टिंग स्कूल्स हैं, क्योंकि मैं कभी एक्टिंग स्कूल गई नहीं हूँ तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती कि आप जाओ या आप मत जाओ. बट आई मीन दैट्स अ पर्सनल चॉइस एंड अ पर्सनल कॉल. सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लग रहा है कि इतने लंबे टाइम तक 5 साल सीखने के बाद इफ़ यू आर नॉट that dedicated towards being an actor, और 5 साल बाद आप ये चीज रियलाइज करोगे तो I think you'll become a fool. So maybe start with doing something in theater. Start with doing a workshop, which is a smaller time, or maybe 2-3 months का workshop. I'm sure FTI and other places also have like smaller crash courses. मैंने एक बार पता किया था. But you can I think maybe opt for that before you get into a long-term acting school course. Ma'am, any Whistling Woods International BA in acting? Sorry, ma'am, any for Whistling Woods International BA in acting? I have no idea. I've been to Whistling Woods. I did a shoot there. I did a music video, but I've heard good things about it. But honestly, मुझे नहीं पता है. Will you take someone live right now? No, I'm sorry. आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है क्या मैम? यार ये आर्टिस्ट कार्ड का क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है पिछले आई थिंक 2 हफ्ते में, जब से मैंने वो रील डाला था. बट मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी भी लोग मांग रहे हैं आपसे आर्टिस्ट कार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लॉक हो गए हो फॉर एग्जाम्पल, और आपको पैसे आ रहे हैं 20-30 हज़ार, और कोई आपको फोर्स करे कि हम एक्टिंग
कार्ड के बिना नहीं, आप आर्टिस्ट कार्ड के बिना आपको नहीं कर सकते, तो आप किसी सर्टिफाइड उससे आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ, उनके किसी उससे मत बनवाना। एक बार मेरे साथ ऐसा स्कैम हो चुका है, मैं 5,000 रुपए दे चुकी थी क्योंकि मुझे ऐसे ही किसी एक कंपनी ने फोर्स किया था कि ये है महाराष्ट्र बोर्ड है, इससे आप बनवा लो, और फिर मैंने इससे बनवा लिया। मुझे पता चला कि वो सर्टिफाइड बोर्ड है भी नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरे पैसे ले लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, बट ऑनेस्टली मुझसे इतने सालों में आज तक वो दिन के बाद किसी ने आर्टिस्ट कार्ड नहीं मांगा है। सो आई मीन, क्यों, पर मैं टीवी नहीं करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि शायद टीवी में जरूरत होती होगी। यस फॉर इनकम, यस ऑफ कोर्स। देखो, आपको लॉन्ग रन सर्वाइव करना है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप अपने घर वालों से 10 साल तक पैसे नहीं मांग सकते। मैं अभी भी मांग लेती हूँ कभी कभी, बट एनीवे इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स यू हैव टू फिगर आउट अर्निंग मनी फॉर योरसेल्फ। आई वुड सजेस्ट कि आप इस फील्ड से रिलेटेड चीजों में ही जॉब ढूंढे, जिससे आप फॉर एग्जाम्पल सेट्स पे रह पाओ, वहां पर एक्टर्स को देखकर कुछ सीख पाओ, या बैक एंड सीख पाओ। यू नो, फॉर एग्जाम्पल एन एडीज जॉब, यू अंडरस्टैंड जब आप एक एडी के साथ काम करते हो कि डायरेक्टर कैसे सोचता है, उसको क्या चाहिए, क्या क्या चीज जाती है। इवन इफ अगर आप सबसे छोटे पोजीशन पे हो जहां आपको कॉल टाइम मैनेज करना है ना, तो भी आपको समझ में आता है कि एक एक्टर का कॉल टाइम फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये सब जॉब्स में यू रियलाइज समथिंग दैट मेक्स यू अ बेटर एक्टर, और यू गो इनटू कॉस्ट्यूम्स, और यू गो इनटू production assistant, or you go into art, matlab anything which is related to this industry, instead of doing a corporate job, I would say. Like now again talent management companies या online जैसे collaborations आते हैं, तो वो जो companies करती है, मतलब ये सब चीजें आपके फिर भी थोड़े बहुत field से related है. So I would suggest कि maybe do that if you want to work for income. How do you educate someone for financial intelligence? जिंदगी सिखाती है आपको. I mean, I don't know, for the longest time I was not financially educated. Honestly saying, एक टाइम था जब मैं एज अ कोरियोग्राफर काम करी थी, मैं महीने का 2-2 लाख रुपए भी कमा रही थी, और मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ गए. ठीक है, क्योंकि आई थिंक मैं महीने की 1 लाख की शॉपिंग भी कर ली थी, बिकॉज आई वॉज honestly working as an assistant on Bollywood films. I was teaching the biggest of actors in the industry, and me as a person, when I walk in the room, I want to command that authority if I'm teaching someone. Hence I need to look as good as them, be as confident as them, dance like way better, all that thing. तो मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करी थी उस टाइम पे, बिकॉज मेरे को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं था. अभी विद टाइम जब आप छोटे छोटे करके प्रोजेक्ट्स खुद बनाने लगते हो, आप अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करने लगते हो, तो आपको अक्ल आ जाती है. लाइक SIP करना मेरे भाई ने सिखाया मुझे, थैंकफुली कोई है ऐसा. सो दैट बीइंग सेपरेट, उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन हाउ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग यू आर. आई मीन, जिनके पास कम है उनको आई थिंक ज्यादा जल्दी आ जाती है, क्योंकि उनको उस पैसे में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है. बट जिनके पास ज्यादा है उनको आई थिंक ज्यादा टाइम बिताना चाहिए इस चीज के अंदर. Hi. Hello, ma'am. Is it right to do graduation in acting from Whistling Woods International, Mumbai? Honestly saying, यार मैं नहीं कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस स्कूल के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, ना अच्छा ना बुरा. मैंने सुना अच्छा है कि अच्छा स्कूल है, बट मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं पता है, तो I would not like to comment on that. Hi, can you make a video about how to make an introduction video? Like what format exactly, if you haven't already? Well, I have. You can go check the page. Education for actors in financial intelligence. Yeah, very important. Just covered that. दीदी आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Also, I'm an actor in Delhi. My friends always say come to Mumbai. I even visited Mumbai, but I found it very expensive and only verticals people are doing there. Well, not true. Expensive, yes. मुझे ऐसा लगता है मुंबई में सर्वाइव करने के लिए आपको, I mean, I don't know if I should say it, but आपको लक चाहिए. ठीक है, टचवुड, भगवान जी की कृपा अगर है तो सब मैनेज हो जाता है. मैं जब बॉम्बे आई थी, मैं DID के फिनाले में परफॉर्म करने आई थी, और वो परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई थी और मैं सैड हो गई थी. तो जो मेरी कोरियोग्राफर थी खुशबू गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि चलो मेरे घर पे रहो. I said okay, and then she said you can stay as long as you want. Why are you going back? You should work here. And then I just shifted to Bombay. I mean, I didn't go back. और फिर अपने आप कहानी शुरू हो गई.
ना मैं प्लान करके आई थी, ना मैं ये सोच के आई थी कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे. आई थिंक इफ यू कीप गिविंग योर 100% थिंग्स गेट फिगर्ड आउट. Second, verticals के लिए, yes, people are doing a lot of verticals, and I think if you have the opportunity, if the story is not too cringy, you should do it too. Because now the biggest of companies, I heard Rush Media करके company है जो शायद धर्मा ने acquire की है, which is also making verticals. Netflix, Jio Hotstar, all the biggest of the companies are going to start making verticals. मैंने इस बारे में पहले भी एक रील बनाया था कि जब वेब शो स्टार्ट हुए थे, जब OTT स्टार्ट हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, बड़े एक्टर्स नहीं करते थे, राइट? बिकॉज उनको भी ऐसा था कि अरे कुछ तो नया आया, हम टीवी पे नहीं आएंगे बिकॉज हम थिएटर्स में आते हैं. एंड इवेंचुअली नाउ द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स आर डूइंग इट, एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन फॉर माइक्रो ड्रामा इंडस्ट्री. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. मैम, डिड यू रिप्लाई इन इनबॉक्स? आई होप यू रिप्लाई मी देयर. देखो दोस्तों, मुझे ना हाय मैम रिप्लाई कर दो. आप ये भेजोगे तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी. मुझे पता ही नहीं मैं क्या रिप्लाई करूं. अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे जो मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी, उस चीज का रिप्लाई देके, दैट इज द ओनली सिनेरियो वेयर आई विल रिप्लाई ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम सॉरी बट थैंकफुली द पेज इज डूइंग वेल. और मुझे डेली 20, 30, 50 मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी के अंदर. तो अगर आप मुझसे ये कुछ सवाल पूछोगे मीनिंगफुल, तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगी. सो इंस्टेड ऑफ waiting for me to reply and then send whatever you want to ask me, just directly send, this is what I have a problem with, can you help with this or can you suggest this? That'd be a better way. Hi, but at the same time jobs are also uncertain. I mean, which jobs? See, if you're saying entertainment industry में जो jobs है, if you're saying that is uncertain, I feel like that's the best part, that you can leave it whenever you want. I mean, if you're working as a freelancer, इस महीने आप एड में या आप किसी प्रोजेक्ट में लॉक नहीं हुए और आपको पैसे चाहिए तो आप कर लो. जिस महीने आप लॉक हो गए हो, खाली भी बैठे हो, तो और काम ढूंढने पे एनर्जी इन्वेस्ट करो, उस टाइम पे और कुछ मत करो. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इंस्टेड ऑफ अ कॉर्पोरेट जॉब, दिस जॉब इज बेटर बिकॉज यू गेट मनी एंड यू कैन ऑल्सो चूज इफ यू वॉन्ट टू वर्क और इफ यू डोंट वॉन्ट टू वर्क. व्हेन डिड यू बिगिन योर एक्टिंग करियर? यार ऑनेस्टली मैं 2014 में आई थी फॉर डांस इंडिया डांस टू बॉम्बे. तो मैंने वो टाइम पे 1-2 ऑडिशंस दिए थे, ठीक है. थिएटर मैं स्कूल से करती थी. एक्टिंग मैं यहाँ पे आने के पहले करती थी. मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ एक पूरा थिएटर प्ले किया 2 घंटे का जब मैं स्कूल में थी, विच वॉज 3 years बिफोर कमिंग टू बॉम्बे. बट क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्टिंग ऑडिशन कहाँ होते हैं, और ऑनेस्टली मैंने सोचा भी नहीं था. तो मैंने 1-2 ऐसे ही फालतू टाइप के ऑडिशन दिए थे जो मुझे अब समझ में आता है कि उस टाइम पे स्कैम ही था वो. एंड देन आई वॉज डूइंग एक्टिंग, आई वॉज डूइंग थिएटर. आई वेंट बैक टू दिल्ली टू डू थिएटर. मैंने यहाँ पे भी काफी काम किया, बट प्रॉपरली आई थिंक डेडिकेटेडली इन टर्म्स ऑफ ओनली एक्टिंग एंड डूइंग नथिंग एल्स, आई थिंक इट्स बिन 4 years नाउ. बाकी टाइम पे मैं कोरियोग्राफी भी कर रही थी उसके पहले 4, 5, 6 साल, और मैं ऑडिशंस भी दे रही थी जो ऑनलाइन आ जाते थे, या जब आराम नगर में हम जाकर ऑडिशन देते थे तो मैं ऑडिशंस देती थी, बट मैं साथ में कोरियोग्राफी भी करती थी. तो इसके लिए मुझे पता है कि मैं ऐसे दे रही हूँ ऑडिशन 10 साल से, बट ऑनेस्टली दिल में मुझे ऐसा लगता है कि आई लेफ्ट दैट बैकअप थिंग बिहाइंड. आई स्टॉप वरिंग अबाउट मनी एंड आई गेव माई सेल्फ कम्प्लीटली टू एक्टिंग, आई थिंक 4 years ago. Please take someone live now. No, not today. मैम प्लीज लास्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड में इंग्लिश आना कितना जरूरी है? आई मीन यार लाइफ चॉइसेस हैं ऑनेस्टली. देखो, जैसे जिंदगी में, अब पूछो जिंदगी में इंग्लिश आना कितना जरूरी है. इट हेल्प्स यू समवेयर. आप किसी कमरे में घुसते हो, एज लॉन्ग एज यू आर प्राउड ऑफ वॉट एंड हु यू आर. आज अगर मैं किसी कमरे में जाऊंगी और मैं बोलूंगी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, बट अगर मैं अपनी क्राफ्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एज एन एक्टर कॉन्फिडेंट हूँ, तो शायद जो कैरेक्टर्स हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे. बट बहुत कम कैरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में जो इंग्लिश बोलते हैं. सारे सीरीज में सब हिंदी बोलने वाले ही हैं. आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर यही मैं अपने आप को इंफीरियर समझूंगी और मैं किसी कमरे में जाकर बोलूंगी कि सॉरी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, देन आई डोंट लुक कॉन्फिडेंट एंड हेंस आई विल नॉट गेट दैट वर्क. सो I mean, it's personal choice.
हाय मैम, दिस इज आरव मैम। मुंबई में सिंगल पर्सन को रहना हो तो अफोर्डेबल एरिया कौन सा है? ये बहुत बड़ा डिबेट है दोस्तों, बट सी अंधेरी इज वेरी एक्सपेंसिव। आपको अगर अपना अकेले का घर चाहिए तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने गोरेगांव में घर लिया है, विच इज 28,000, जो कि 1 RK को बीच में वॉल डाल के उन्होंने 1 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम छोटू ऐसा बनाया है, एंड इट्स अ गुड डिसेंट प्लेस। यही मड के साइड आप जाओगे तो मेरे दोस्त अभी देख रहे थे, उनको 2 BHK मिल रहा है आई थिंक 24,000 में, बट जेटी से जाना पड़ता है जो रात को 1 बजे बंद हो जाती है, और उसके बाद अगर आपको वापस जाना है तो आपको यहाँ से पूरा घूम के 1-1.5 घंटे का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। ऐसे ही मीरा रोड बहुत सस्ता है, मेट्रो से इट्स ओनली 35 मिनट्स, बट अगर आप गाड़ी से जाओगे मेट्रो 11 बजे बंद हो जाती है, तो फिर आपको वापस 1-1.5 घंटा लगेगा। तो ऐसे सिंस आई एम लिविंग इन दिल्ली आई ऑल्सो गिव ऑडिशंस फॉर मुंबई, बट व्हेन द बजट इज लो आई डोंट फील लाइक कमिंग। फॉर विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई शुड कम? देखो, मुझे ऐसा लगता है द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ एज एन एक्टर हैज बिन कि जब तक कुछ उखाड़ ना लो ना, तब तक पैसे की चिंता मत करो। जो भी चीज एज एन एक्टर मैंने पहले नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फीचर फिल्म का 4 दिन का शूट कभी नहीं किया है, 1 ही दिन का शूट किया है आज तक, तो मैं उस 4 दिन के शूट के लिए पैसे के लिए नहीं लड़ाई करूंगी, क्योंकि मैं कितना ज्यादा पैसा कमा लूंगी, 1 लाख रुपए ज्यादा कमा लूंगी। बहुत ज्यादा लड़ ली तो कि नहीं 25,000 रुपए ज्यादा दे दो पर डे, 20 में नहीं करूंगी 45 में करूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो भी वो 1 लाख रुपए में जिंदगी नहीं बदलेगी। बट एक फिल्म सेट पे 4 दिन काम करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस, लोग जो मुझे देखेंगे, जो मुझे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे। सो जो भी चीज मैंने एज एन एक्टर पहले नहीं की है, वो करने के लिए मैं पैसे के बारे में नहीं सोचती हूँ। जेब से जा रहे हैं अगर आपकी, क्योंकि आप दिल्ली से आ रहे हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज इवन इफ इट्स ब्रेकिंग इवन, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट केयर अबाउट मनी। वहीं पे जो चीज आपने पहले कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आज मदर कैरेक्टर्स, बहुत क्लियर है जिंदगी में कि 1 लाख रुपए पर डे के नीचे मदर कैरेक्टर का ऑडिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉर एड्स। स्पेशली किसी दिन कोई पिक्चर बना रहा है और बहुत अच्छी कहानी लेके आ जाएंगे तो बात अलग होगी, बट अगेन जो चीज मैंने पहले कर ली है उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी फॉर मनी। बट इफ एनी न्यू एक्सपीरियंस, एनी बेटर स्टोरी, बहुत कम पैसे के लिए भी मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन एड विच आई डिड फॉर मोको बारा, विच वॉज very nominal fee, like very nominal, not very less also, not bad also, but nominal, but I did it because I loved the ad. So yeah, take a call like that. Which theater is best in Delhi for learning acting? Guys, मैंने दिल्ली में थिएटर नहीं किया है तो मुझे माफ कीजिए। Did my first Netflix web series project finally. Congratulations Mr. Aditya, congratulations. इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा एक्टिंग पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? जो कास्टिंग डायरेक्टर्स, इतने में खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स देख लें, तो एक एक्टिंग पोर्टफोलियो में देखो, पहली बात तो मैं पोर्टफोलियो जैसा कुछ नहीं भेजती हूँ। मैं जब प्रोफाइल भेजती हूँ, आई सेंड माई नेम, एज, हाइट, लोकेशन, 1 लिंक टू माई इंस्टाग्राम, 1 लिंक टू द इंट्रोडक्शंस, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पे, विच हैज अ कॉर्पोरेट लुकिंग इंट्रोडक्शन, विच हैज अ इंडियन लुकिंग एंड अ वेस्टर्न लुकिंग इंट्रोडक्शन। सो 3-4 वेरिएशंस है, एक पुअर गर्ल, एक रिच गर्ल, ऐसे वाले। तो वो मैं प्लेलिस्ट ही भेज देती हूँ ताकि वो खोल के उनके कैरेक्टर से जो भी क्लोजेस्ट है वो दिख सकें। एक लिंक मैं भेजती हूँ वर्क लिंक, जिसमें मेरे सारे यूट्यूब के वर्क लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं, और अगर आप चाहो तो IMDb भेज सकते हो अगर आपके पास है तो। प्लस with that I send 5 to 6 photos of different looks, clean face, looking modern, looking whatever. That is what I send. I don't send anything else. I don't send like a PDF. I don't know, I mean probably a casting person would be able to tell better if that works, but मैं ये भेजती हूँ। I think क्योंकि casting directors को अगर उसमें सब कुछ मिल जा रहा है जो उनको चाहिए, तो I mean that's the best case scenario. Is Mumbai safe for girls? 100%. 100%. I mean अगर आप बेवकूफ नहीं हो, I mean you can judge right and wrong. I think Bombay has been the safest place that I have visited in India. बहुत सारी जगह गई हूँ मैं, but Bombay is very safe. Chandigarh is also by the way very safe. Like it was a digital ad, budget was only 8K, so I didn't do it. हाँ, see that
आई अंडरस्टैंड, इट मेक सेंस कि अगर आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, बट अगर 3,500 रुपए की एक तरफ की टिकट मिल रही है और आपको लग रहा है कि 8,000 में आना जाना हो जाएगा, किसी एक दोस्त को आप कॉल करके उसके घर पे रुक सकते हो और आपको 0 पैसे मिलेंगे, तो भी आपको वो ऐड कर लेना चाहिए इफ यू नॉट डन इनफ वर्क, इफ यू डोंट हैव इनफ वर्क लिंक्स। क्योंकि अगेन जब आप कास्टिंग वालों को आपका प्रोफाइल भेजते हो, वो देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर जॉब्स आर ऑन द लाइन, राइट। आज अगर वो आपको किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लॉक करा देते हैं एंड यू कांट गो एंड परफॉर्म ऑन सेट, किसको पकड़ा जाएगा? उनको पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए जितने वर्क लिंक्स आपके पास है, अगर आपके पास 10 अच्छे वर्क लिंक्स है तो आप चूज करो नहीं करना प्रोजेक्ट, बट अगर वो नहीं है देन आई थिंक you should take a chance and you should just do it so that you have a few work links and you look like a professional actor when you share your profile. Ma'am, PG is also good option na शुरुआत में. I've not lived in a PG but I think yeah. Describe your first acting experience. What was my first acting experience? काफी खराब एक्सपीरियंस था गाइस, याद आ गया. I mean एक एयरटेल का ऑडिशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें प्रॉपर लाइन्स के साथ ऑडिशन हुआ था. फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए बुलाया गया. जब मैं लॉक हो गई थी तो हमको बोला गया कि 2 मेन फीमेल्स हैं और उनके 2 मेन फ्रेंड्स हैं जिनका कैरेक्टर है. पैसे उन्होंने दिए थे 4,000 रुपए, बट आज से 10 साल पहले की बात है. सो आई मीन एंड इट वाज इन दिल्ली, सो आई वाज लाइक ओके आई जस्ट वांट एक्सपीरियंस फॉर नाउ. फिर मैं सेट पे गई हूँ तो मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां थी. देयर वाज अ गाय हु वाज डूइंग दैट मैच बिटवीन देम एंड 2 friends and 60-80 other friends. I mean, they were not cast, they were feature cast, they were dancers, they were most of my friends and they like उनके closes वगैरह नहीं लिए गए थे, ये वो but फिर मुझे समझा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि किस चीज के लिए मैं लॉक हुई हूँ, मुझे पूछना पड़ेगा. आई विल हैव टू हैव द करेज टू पॉइंट ब्लैंक आस्क what is it am I doing? Is it a primary character, a secondary character, a tertiary character or a background character? And then I can take a call of what I want to do, if I want to do the project or not. Because again, अगर मैं कोई चीज पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ तो मैं एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ या मैं मेरी विजिबिलिटी के लिए कर रही हूँ. बट अगर मुझे वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर फायदा क्या है? सो दैट. Hi, I also want to act. Can you give me a good casting company name where I can contact? There are 2 videos up on my page with I think 20 casting companies and you can do that. क्या आप भी बता सकते हो like for beginners के लिए for casting updates groups number के बारे में, because after mailing them generally nobody answers. Okay, so okay, understood. Next video that I will put with numbers of casting coordinators, okay, not casting companies. I'll give you names of 5 casting coordinators. आप उनको अपना प्रोफाइल भेजो. मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रुप्स से बेटर वो लोग हैं क्योंकि वो जेन्युइन है. मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ. ग्रुप्स में मोस्टली मैंने दिए हैं. 3-4 साल मैं उन ग्रुप्स पे रही हूँ जिनके लिए मैं ऑडिशन पे भी गई हूँ, जो मैं आपको बोली थी. मुझे बाद में अब लगता है कि वो शायद सब स्पैम था. Like these are just nonsense messages that people send. I don't even know what they get out of it, but they get something out of it. But वो असली नहीं होते. Most of them are नकली. Most of them are for characters that are not even characters. If you're a serious actor, I don't think you should do that. मैं आपको next video में कुछ casting coordinators के नंबर नहीं दूंगी. Instagram profiles उनको टैग करके I will send them and you guys can share your profiles with them. और वो कास्टिंग जो कोऑर्डिनेटर होता है वो एक कोऑर्डिनेटर 5-7 कास्टिंग कंपनीज के साथ काम करता है, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ऑडिशंस भी बढ़ जाते हैं. मैम प्लीज रिपीट. कौन सी बात? हाय आई ऑल्सो वांट टू ऐड. कैन यू गिव मी? ये तो हो गया मेरा. Intro for ads and films are different, basic and detailed. So which one you send? I always send basic intro, name, age, height, profile, number, thank you. That's all I send. Until unless somebody sends me a message saying please send a detailed video. अगर कोई मुझे बोलता है कि आप अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन भेज दो तो मैं नॉर्मल नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल्स करने के बाद मैं कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, मैं क्या क्या स्किल्स हैं मेरे, मैंने एज एन कोरियोग्राफर काम किया है, कौन कौन से डांस स्टाइल्स मुझे आते हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एज एन एक्टर, वो सब कुछ बताती हूँ.
but I think I only send basic ones until it's specified. Please repeat. एक अच्छा acting profile कैसा होना चाहिए? Name, age, height, location, Instagram link, introduction link, work link. और नीचे अगर IMDb है तो आप उसको डाल सकते हैं. अगर वर्क लिंक नहीं है तो रेफरेंस ऑडिशन लिंक्स डाल दो, जिसमें 2-3 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑडिशंस हो. एंड अबाउट 4 to 5 photos. So what do you suggest for how much time I should be in Delhi? That depends on you. देखो, honestly, मेरी एक दोस्त है. Even though now she shares the house with me, for 2 years she was giving auditions from Delhi. Her name is Shweta. और वो जब भी कुछ लॉक होता था तो वो मेरे पास आके रुक जाती थी. एंड तब महीने में 30-35 ऑडिशंस देने के बाद 2 महीने में एक प्रोजेक्ट लॉक हो रहा है या ऐसे होता था. नाउ दैट द टाइम हैज पास्ड एंड शी इज डूइंग टचवुड एटलीस्ट 1 project a month, 1-2 projects a month. तो नाउ वी शेयर अ हाउस व्हेनेवर शी कम्स हियर, शी लिव्स हियर. तो अभी भी वो फुल टाइम शिफ्ट नहीं हुई है. इट इज ऑन यू एंड योर कन्वीनियंस कि आप क्या मैनेज कर सकते हो. So at least the work should be nice or money. Yep, either of the two. दीदी आप मुंबई से हो क्या? जी नहीं, मैं पैदा हुई थी नोएडा में, बट अब मैं आई थी 2014 में. 2026 चल रहा है, तो 12 साल हो गए अब यहाँ पर. Hi Rax, what's up? What do you think about Boschil Group? यार मुझे नहीं पता ये क्या है, सॉरी. Sure. Hey, yeah, hey. Casting director asking for work links when you have none. I guess that's hampering me not getting work. Your viewpoints on this. Okay, so record reference auditions and create work for yourself. As simple as that. आजकल लोग Instagram के लिए वेब शोज बना रहे हैं, राइट? मतलब माइक्रो ड्रामास लोग अपने Instagram पे बनाकर डाल रहे हैं. आप उसके लिंक्स शेयर कर सकते हो. बेसिकली वर्क लिंक क्या है? वो देखना चाहते हैं कि आपको एक्टिंग आती है नहीं आती है, आपने क्या काम किया है. आप अपने लिए काम क्रिएट करो ना. 2 दोस्त मिलो, एक स्क्रिप्ट लिखो और एक जन को ले आओ शूट करने के लिए. नेचुरल लाइट में बाहर जाके शूट करो. ये नेचुरल लाइट है, कुछ भी लाइटिंग नहीं किया हुआ है. इट इज वेरी इजी टू नाउ generate work if the work is not coming to you. This is one way. Second way is doing scene works. छोटा सा सीन उठा लो, 2 लोग मिलके सीन वर्क करो, 2 कैमरा पे शूट करो. अपने वाला जो कैमरा है आप पूरा अपने ऊपर सेंट्रिक रखो ताकि वो मोनोलॉग जैसा या वो सीन वर्क जैसा लगे. पुट दैट, रिकॉर्ड मोनोलॉग्स. तो सीन वर्क, मोनोलॉग्स, ऐसे वाले काम खुद क्रिएटेड, पुट देम इन वन प्लेलिस्ट और सेंड डिफरेंट लिंक्स टू देम एंड दैट वर्क्स. मैम आई वांट टू बी एन एक्टर बट मुंबई जैसी एक्सपेंसिव सिटी में शिफ्ट होने में बहुत डर लगता है, क्या करूँ मैम? कैन यू गिव अ सजेशन? माई करंट इनकम इज 10K पर मंथ, व्हाट शुड आई डू? देखो मुझे ऐसे लगता है यार, ऑनेस्टली ये बात मैंने पहले भी कही है, गेटिंग वर्क कम्स इन फेजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी समझ है, कुड बी रॉन्ग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मेरे पास से 200 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पिछले 6 महीने से ऑडिशन कर रही हूँ. अब ऑन अ डेली बेसिस 50-100 लोग और अपनी प्रोफाइल भेजते हैं. मुझे पता भी नहीं है कि वो एक्टर हैं नहीं हैं, कहीं से नंबर मिल गया है. until unless I have the patience, या वो कैरेक्टर के जैसे दिख रहे हैं तो शायद मैं खोल के उनकी लिंक्स देख लूंगी. अदरवाइज आई डोंट रिकॉग्नाइज देम, राइट? देन वो जो 200 एक्टर्स हैं, अगले 6 महीने के अंदर उनका इनकम जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा, तो वो ये प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे या वो बेटर प्रोजेक्ट्स करेंगे. अब शायद सेकेंडरी कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, तो एक जगह वेकेट होती है. अब इस बीच में जो नए नए लोग मुझे भेज रहे थे ना, उसमें से जिन लोगों का मैं सेम नाम, फॉर एग्जाम्पल हर 2 महीने में, हर 1 महीने में मैं देखूंगी कि मुझे प्रोफाइल भेज रहा है, तो 6 महीने बाद तक मैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगूंगी. फिर मैं उन नए लोगों को ऐड करूंगी उन 200 लोगों में. ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, ये मुझे समझ में आया. सो देर इज अ फेज. पहले 6 महीने तक आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा, आप सिर्फ प्रोफाइल भेजोगे. फिर उसके बाद आपको सिर्फ ऑडिशन आएंगे, आपको ऑडिशन बनाना नहीं आएगा. हर बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे एक्टर को लगता है आई एम अ वेरी गुड एक्टर बट दे सक एट मेकिंग ऑडिशंस. इट इज एन आर्ट दैट यू लर्न व्हाइल यू मेक ऑडिशंस. हर ऑडिशन के साथ आप बेटर होते हो. तो फिर 6 महीने आप गंदे ऑडिशन भेजोगे,
फिर उसके बाद 6 महीने बाद, मतलब 1 साल निकल गया है, फिर 6 महीने बाद शायद आप शॉर्टलिस्ट होना शुरू होंगे, राइट? अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जा रही है तो आप अच्छे ऑडिशन पहले भी भेज सकते हो इस पेज के थ्रू, बट गिव दैट टाइम ऑफ 6 months 1 year, जहां पे आप दिल्ली में ही रहकर अपनी प्रोफाइल्स भेजो, लोगों को रीच आउट करो, ऑडिशंस घर से बनाओ, जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना कि आप 10 में से 4 या 5 ऐड के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पर ऑफलाइन ऑडिशंस अब नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। वेब शोज के लिए या शायद फिल्म्स के लिए वो आपको बुलाते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें अगर वो आपको जानते नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि आपको बुला ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में आप दिल्ली से रह के मैनेज कर सकते हो बहुत इजीली। आपने जो वर्क लिंक बताया वो क्या सारे होते हैं? तो एक लिंक में ऑल वर्क लिंक्स कैसे सेंड करें? इस पे एक वीडियो है मेरे पेज पे, आप जाके चेक कीजिए, हाउ टू सेंड योर वर्क लिंक्स इन अ प्लेलिस्ट। अगर अपन किसी कास्टिंग कंपनी में मैसेज सेंड करते हैं और अगर वो बहुत फास्ट रिप्लाई कर देते हैं तो फेक है यार? यार ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन है। आई मीन, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, या आप उस कैरेक्टर के जैसे दिख रहे हो सकते हो, या फिर उनके पास जो करंटली एक्टर्स हैं उनमें से कोई नहीं चल रहा होगा, या फिर नहीं, आई थिंक यही तीन तरीके हैं कि कोई आपको जल्दी से रिप्लाई कर दे। अदरवाइज यूजुअली नहीं होता है। इफ दे थिंक यू फिट द बिल, ऑफ कोर्स दे विल रिप्लाई वेरी फास्ट। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है जज करने का कि वो फेक है या वो रियल है। स्टार प्लस, कलर्स टीवी, जी टीवी का कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन है? एक तो मैं टीवी में काम नहीं करती हूँ गाइस, प्लस ऐसे नहीं होता है कि स्टार प्लस का एक डायरेक्टर होगा, कलर्स का एक डायरेक्टर होगा, ऐसा नहीं होता है। हर शो का अलग डायरेक्टर और अलग कास्टिंग डायरेक्टर होता है। Like one casting director can be doing shows for all 3 channels also. Now, who are these casting directors who are doing for TV? At this point, I don't know. I'm very sorry. I will find out. एक वीडियो है जो मैंने रीपोस्ट की है इस पेज पे about somebody else who had mentioned TV के casting के लोग. I think I will check it. What about artist card? ये तो मैंने बता दिया guys. Hello ma'am, I am Ritik Lavania. Hello, hi. Does the casting couch still exist in Bollywood? यार honestly एक बात बताऊँ, ये सब जो होता है ना, ये सब बहुत ऊपर लेवल पे हो रहा है शायद, जहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और सैडली जितनी भी ये कहानियाँ हम सुनते हैं, they are not for these small things that I am currently doing. I think, I don't know. Even if it exists at the top of the game. So I have no idea. Can you tell any local or good casting people to share profiles with? Last 2 reels on the page, go check. I've heard many times that actors have a lot of attitude. यार ये ना बहुत controversial topic है, but मुझे ऐसे नहीं लगता है. I don't think good actors have an attitude. I think they have earned the right to be respected. Honestly saying, आज मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं बहुत अच्छी हूँ. Sadly, मेरे साथ अगर कोई अच्छा नहीं है तो मैं बहुत बुरी हूँ. Honestly saying, जैसे जैसे आप काम करने लगते हो, जैसे जैसे लोग आपको recognize करने लगते हैं, आपकी फॉल्ट्स भी उतनी ज़्यादा दिखने लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड माई हेयर मेकअप लुक्स वेरी बैड. जस्ट सेइंग एग्जाम्पल, आई विल बी पिस्ड, राइट? बिकॉज शायद पहले अगर मैंने ये किया होता तो कोई नहीं दिखता, बट आज मैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी के ऑपोजिट खड़ी हूँ तो दुनिया देख रही है मुझे. फिर मेरा एटीट्यूड बदलेगा कि अगर आपको आपका काम नहीं आता तो प्रॉब्लम मेरी नहीं है ना? वहीं पे इफ एवरीथिंग इज गुड, आई एम द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन ऑन सेट. प्रोडक्शन के साथ ये बहुत होता है. सीनियर एक्टर्स को आप पागल नहीं बना सकते. मतलब इतने साल हो गए, दुनिया देख लिया उन्होंने, अब आप उनको पागल नहीं बना सकते. और मैं थोड़ी ज्यादा समझदार हूं तो मुझे पागल बनाना और मुश्किल है.
And in that case, when actors stand up for themselves or they fight and they call you out for doing wrong things, you think they have attitude. बड़े से बड़े एक्टर्स की जब बात करते हैं कि अरे वो टाइम पे नहीं आता, अरे वो ये नहीं करता, they are handling crazy schedules to manage the life that they have. वो जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं उसके प्रेप के लिए उनको बहुत मेहनत लगती होगी. एक I mean, just imagine धुरंधर में जो रणवीर सिंह ने किया है, ह्यूमनली पॉसिबल है क्या वो बिना चिड़चिड़ा हुए? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट इज. यू हैव टू गेन वेट, यू हैव टू बी अ गुड परफॉर्मर, यू हैव टू कम बैक टू योर होम, स्विच ऑफ, be present for your family, and then again go tomorrow and be present on set and become a different person on set who's so violent and who's so, I mean, let's not talk about it. Ma'am, I want to start acting, but I don't know anything about acting, so please tell me something about it in shortly. Well, जाइए मेरी वीडियोस देखिए. This is the only thing that I can tell you shortly. सबसे पहली सबसे नीचे से वीडियो देखना चालू करो. मैम सलमान खान, मेरे फिल्टर कैसे लग गया? 1 second guys. Better. कहाँ थी मैं? हाँ, मैम सलमान खान से थोड़ा कांटेक्ट करवा दीजिए, डायरेक्टली बिग बॉस की बात हो जाएगी. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल था. इसी सवाल को कहते हैं स्टूपिड सवाल. सॉरी. इज इट पॉसिबल फॉर एन इंट्रोवर्ट टू सर्वाइव इन द एक्टिंग करियर? यार, अनदर थिंग दैट आई लर्नड द हार्ड वे. पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे मुझे नहीं करना है ये सब चिट चैटिंग, लोगों से सोशलाइज करो, दारू पियो जाके, ये वो. बट आई रियलाइज कि इसका मतलब ही नहीं है सोशलाइजिंग. सोशलाइज करने का मतलब ये है कि बॉम्बे में लोगों को पता हो कि तुम एज एन एक्टर एग्जिस्ट करते हो, राइट? I mean, if you're an introvert and if you stay at your home, expecting कि दुनिया तुम्हारे घर पे आ रही है तुम्हारे लिए काम लेके is delusional and not in a good way, in a bad way, right? आप introvert हो सकते हो as long as you know when to make your existence feel real in a room. अगर आज 200 कास्टिंग वाले हैं बॉम्बे में, एटलीस्ट 100 कास्टिंग वालों को पता होना चाहिए कि जूही अरोरा एग्जिस्ट करती है बॉम्बे में, तभी तो कोई मुझे काम देगा, राइट? वो पॉसिबल नहीं है विदाउट शोइंग योर वर्क टू पीपल, विदाउट बीइंग वोकल अबाउट इट, विदाउट क्रिएटिंग अ सर्किट ऑफ फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स, जो आपको बता सकें कि सुनो ये कास्टिंग वाले ऑफिस में ये कास्टिंग चल रही है, क्योंकि उनको आया होगा शायद वो ऑडिशन. ऐसे एक्टर फ्रेंड्स जो आपको गाइड कर सके कि ये ऑडिशन को ऐसे बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ये बेकार है, ये सही है, जो वो सब करना बहुत जरूरी है सर्वाइव करने के लिए यहाँ बॉम्बे में. सो आई थिंक दैट्स द आंसर. Do you watch world cinema? Your 5 favorite international movies? Well, I am not like a big I don't know, watching and learning person. I love watching films. अभी जस्ट वी फिनिश वॉचिंग गॉडफादर, क्योंकि इसके पहले हमने वो वेब सीरीज देखी थी जो थी ऑन द मेकिंग ऑफ गॉडफादर. आई लव वॉचिंग फिल्म्स, आई लव वॉचिंग ऑल काइंड्स ऑफ रोमांटिक फिल्म्स. उसके 2 दिन पहले आई सॉ डेविल वेयर्स प्राडा 2. आई मीन, आई डोंट evaluate films on which ones I like the most and I don't like the most, especially international films. I watch it for the joy of watching. I watch it, I don't care about the film as long as I'm feeling something. I enjoy it. I watch the actors perform sometimes and I don't do a lot of studying and evaluation of that personally, at least till now. मैम, मेरी पर्सनालिटी तो हीरो जैसी है, बट मैं सोचता हूँ मुझे कोई भी रोल मिल जाए बस. क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वेरी गुड जॉब. भगवान जी से कोई रोल दिलवा दो जल्दी से. I'm facing a lot of difficulty in understanding audition briefs. Can you give any tips? Okay. देखो, audition briefs में let's start with the fact कि सबसे पहले audition brief कभी मत सुनो, कभी भी मत सुनो. पहले आपको जो स्क्रिप्ट दी होगी साथ में, वो स्क्रिप्ट पढ़ो. स्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिवली पढ़ो और हर एक वर्ड पढ़ो. वो स्किप करके सीधा डायलॉग पे मत जाना, ठीक है? पहली लाइन में आपको बताया जाता है कि इस एड या इस ऑडिशन की दुनिया क्या है,
ठीक है, ये कैफे में हो रहा है, ये घर पे हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, वो पढ़ो. अब every detail of every character, read nicely, then go listen to the voice note. आपको वॉइस नोट सुनने के पहले ऑलरेडी एक सर्टन आइडिया होना चाहिए कि इस ऑडिशन में हो क्या रहा है, ये सीन में हो क्या रहा है, मेरा कैरेक्टर कौन है, मेरे कैरेक्टर की जगह क्या है, क्या वो प्राइमरी कैरेक्टर, क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, या वो उसका कोई दोस्त है, उसको कोई हेल्प करने के लिए है. तो उतना ही करो. जब आपको अपनी दुनिया बताओगे और तब आप किसी वॉइस नोट को सुनोगे तो आप उस चीज को बेटर समझ पाओगे, बेटर इमेजिन कर पाओगे. बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे वो वॉइस नोट डीएम कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू. बट वॉइस नोट सुनना और उसके साथ अपना इंटरप्रिटेशन लिख के भेजना. अगर मुझे लगेगा कि सही है गलत है, उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. There is one of my friends in Mumbai. He says that there is no point of doing ads. He said that it do not make you get work for any other project. Well, honestly saying, I love doing ads. मेरा घर चल रहा है ads से. आपको एक ad up to 1 lakh, 1.5 lakh रुपीज दे सकता है एक दिन में. ठीक है, स्टार्ट में नहीं हुआ. स्टार्ट में शायद 10,000, 15,000, 20,000 पूरे महीने का रेंट निकल जाता है एक एड करके. प्लस ऑल द 30 डेज एवरी डे किसी ना किसी एड की कास्टिंग हो रही होती है. तो आपको ऑडिशंस बनाने की प्रैक्टिस, आपको अलग अलग कास्टिंग कंपनीज में अपना ऑडिशन भेजना ताकि वो आपको जान पाए, ये सब चीज आपको कैरेक्टर्स, अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स रोज एक्सप्लोर करना, ये सब भी बेटर मिलता है एड्स में. वेब के ऑडिशन बहुत कम होते हैं, आप बहुत लकी हो अगर आपको मिल जाए. फिल्म के ऑडिशन बहुत कम होते हैं, बहुत लकी हो अगर आपको कोई मिल जाए. प्लस एक एड में लीड मिलना कंपैरेटिवली आसान है देन अ फिल्म एंड अ वेब शो. सो I love doing ads and I enjoy doing it because I also enjoy the money. So yeah. How do you sustain yourself financially when no work is happening? I mean, how do you deal with those thoughts? Okay, so that is honestly one other reason of feeling like giving up. I'm being very frank. Sometimes it happens जहाँ फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने फिल्म बनाई, मेरी लाइफ के 2 महीने उस फिल्म में चले गए. 3 दिन का शूट था सिर्फ, बट मुझे 20 दिन लगे उस स्टोरी को लिखने में बिकॉज आई रोट इट 10 डिफरेंट टाइम्स. आई लर्न हाउ टू ऑपरेट सेल टेक्स्ट, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट ऑन सेल टेक्स्ट, सो दैट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट प्रोफेशनली, गेट इन्वेस्टर्स, पिच मीटिंग्स, find characters, rewrite it with Sham who also directed it. Like we kept jamming and हम 15-20 दिन तो हमें स्टोरी लिखने में लगे हैं. फिर नेक्स्ट 10 दिन हमें कास्ट ढूंढने में लगे हैं, कास्टिंग करने में लगे हैं. फिर उसके नेक्स्ट 10 दिन प्रेपरेशन, कैमरा, लाइट, इक्विपमेंट, ये वो करके. तो 2 महीने मेरी जिंदगी के उसी में चले गए. विच मेंट कि मैंने 2 महीने तक कोई ऑडिशन नहीं दिया, कोई काम नहीं किया. विच मीन्स मेरी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपए व्हाटएवर जो भी होती है, जितने के मेरे खर्चे ऑलरेडी हैं, वो 2 लाख 2.5 लाख के डेफिसिट में आ गई हूं मैं. एंड जो मैंने पहले कमाया था वो पैसा मैंने इस फिल्म में डाला है. पूरा घर रीपेंट हुआ है हमारा. वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन मेकिंग दिस फिल्म. सो दीज आर द काइंड ऑफ थॉट्स दैट विल कीप हैपनिंग. स्मार्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए आपको. लाइक आई सेड, जब आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे को खर्च मत करो. ठीक है, there is a life that actors in Bombay want to come and experience, go out every day, drink, party, meet this person, this that. लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो कि क्या प्रायोरिटी है मेरे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है. छोटे गोल्स सेट करो कि मुझे 1 महीने में ये खरीदना है, बेटर ट्राइपॉड लेना है, बेटर बैकड्रॉप लेना है, 6 महीने में एक पिक्चर बनानी है जिसके लिए 1 लाख रुपए जमा करने हैं. ये आज मत डिसाइड करो कि आज ही करना है. प्री प्लानिंग, स्टार्ट सेविंग मनी सो दैट अब जब ये 2 महीने में कुछ नहीं कर पाई हूँ तो जो पहले का पैसा था वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. एंड समटाइम्स ऑनेस्टली यू टू टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड हेल्प फ्रॉम योर ब्रदर एंड हेल्प फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ फैमिली. एंड आई डोंट शाई फ्रॉम डूइंग दैट बिकॉज इट्स ओके. आई मीन इट्स फाइन. व्हेन आई हैव द मनी आई स्पेंड इट ऑन देम एंड व्हेन आई डोंट हैव इट दे स्पेंड इट ऑन मी. सो या. Where are you from? I'm from Noida, but अभी मैं थोड़ी आधी बॉम्बे वाली हो गई हूँ guys. मेरा फोन 2% पे है. आई होप 10 मिनट चल जाए. Okay. I'm very introvert. You have to learn grooming, how to find casting coordinator numbers because I
can DM only. And also क्या सारे casting directors के Insta ID होते हैं? Yes, most of them have Insta IDs, and your Instagram is also very important, guys, because रुको guys, चार्जिंग पे लगा ही लिया जाए, बंद हो जाएगा, एक सेकेंड ना. Sorry. Okay, this is better. Okay. मेरा तकिया पीछे रह गया. Once again. या कहाँ थे हम? कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स के यस, सो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के मोस्टली इंस्टाग्राम होते हैं. एंड आई वाज सेइंग तुम्हारा इंस्टाग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी वो जो 4 फोटो तुम भेज रहे हो देखकर समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो. एक दिन बैठ के मैंने ये इवेल्युएट किया कि मैं 5 फोटो में अलग लग रही हूँ, बिकॉज यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. इंडियन पहन के आप अलग दिखते हो, वेस्टर्न पहन के आप अलग दिखते हो, और वो सारे लुक्स में एक साथ भेज देती हूँ. तो वो देखते हैं, वो आपका इंस्टाग्राम देखते हैं टू नो हु यू आर एज अ पर्सन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द वाइब ऑफ दिस पर्सन, आपने क्या काम किया है. तो इंस्टाग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है. स्टार्ट यूजिंग इट वाइजली. स्टार्ट प्रमोटिंग द वर्क दैट यू हैव डन ऑन इंस्टाग्राम इन अ ऑर्गेनिक वे, सो दैट कोई भी आज कास्टिंग डायरेक्टर मेरा इंस्टाग्राम खोलता है तो वो पहले 4 पोस्ट में समझ जाएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या करती हूँ. ओके. एंड कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को डीएम करो गाइस. कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को पैसे मिलते हैं हमको काम दिलाने से, ठीक है. दे चार्ज अ फी विच इज अ 20% फी, सो दे वर्क एक्स्ट्रा फॉर द मनी दैट दे आर अर्निंग फ्रॉम यू, हेंस दे रिप्लाई यू फास्टर. व्हाट यू हैव डन इन योर हेयर? यार ये कल मैंने एक ऑडिशन बनाया था जिसमें आज सुबह मैंने रील डाली है, तो वो बाल कर्ल किए थे तो थोड़े से अभी रह गए हैं. मैम यू आर सो ब्यूटिफुल. थैंक यू. वेयर आर यू फ्रॉम? बताया मैंने, नोएडा से हूँ मैं. अगर मैं थोड़ा बहुत मॉडलिंग करके फोटोज वीडियोस बना लेता हूँ तो किसको अप्रोच करूँ और कैसे करूँ? ये मुझे सवाल नहीं समझ में आया फ्रेंड्स. आपको मॉडलिंग करनी है या आपको शूट करना है? अच्छे से सवाल लिखो इस पे. I'm a fresher. Any advice for me? Go watch all the videos on this page. That's my advice for you. I'm sure it will help you. मैम आपको फिल्टर की जरूरत नहीं है. मैम आप तो बहुत प्यारी हैं. मुझे पता है कि मैं प्यारी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सोशल प्लेटफॉर्म. कल को कोई मेरी कहीं से भी गंदी सी फोटो निकाल के कहीं पे भी लगा सकता है. और ये बात मैंने सीखी है, पता है कैसे? मैंने रिसेंटली एक एड किया था. उस एड कंपनी ने एक BTS किया था जिसमें ना मैंने बहुत ज्यादा स्माइल किया है, ऐसा करके कुछ तो बहुत ज्यादा स्माइल कर दिया है बात करते करते, और उन्होंने वही मुंह इतना बड़ा कवर फोटो लगा के अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है. गॉड, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो कॉन्शियस अबाउट हाउ दे आर लुकिंग, especially like the big actors, because they are being watched all the time, they are being trolled all the time, so it matters. We were in the same Hyundai shoot with Vasant Bala sir. Crazy day. Pack-up was at 2 a.m. Arnav, hello. Oh yeah, I remember. बहुत अच्छा दिन था यार. Honestly, Vasant Bala sir को like one of the very very big directors, and we were very fortunate. Like he was very patient. कुछ उनको स्ट्रेस नहीं था फेस पे, एंड ऑनेस्टली द सेट वाज सो बिग. मुझे अभी भी याद है. सो इन दैट आई हैव टू डू अ 1 स्लो मोशन, ऐसा 1 एक्सप्रेशन ओनली आई हैव टू डू, दैट्स ऑल. ठीक है, जिसके लिए पीछे 150 लोग बैठे हैं जो मेरे साथ ऐसे ऐसे चिल्ला रहे हैं वो पीछे. सो इफ आई डू अ मिस्टेक बिकॉज द कैमरा इज ऑन माई फेस, दीज 150 पीपल plus the crew of 20-30 people is going to suffer. So it's a stressful situation for an actor. और उसके ऊपर अगर आपको कोई डायरेक्टर स्ट्रेस दे दे थोड़ा सा भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है. But he was so chill. We got it in 2 takes. 1 take पे it happened, but the camera was थोड़ा नीचे, so they said कि प्लेट से थोड़ा सा कवर हो रहा है. And the second take we got it, which was amazing. बॉम्बे और दिल्ली? ये सवाल बहुत मुश्किल है गाइस. खाने के लिए दिल्ली, काम के लिए बॉम्बे. इंडिपेंडेंस और घर के लिए भी अब बॉम्बे है, बट फैमिली के लिए दिल्ली. सो हाफ हाफ. I'm also studying psychology. It also helps in acting. Do you think I should make it a financial support to take counseling from home?
Of course, love. Whatever is not stopping you from doing acting. I mean, एक बात बताऊं, एक्टिंग में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है ऑफ ऑब्जर्विंग, है ना. इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइजेस रिटन इन द बुक्स कि आप घर से बाहर निकलो और रोज एटलीस्ट एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करो ऊपर से नीचे तक. आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग समझ में आएंगी. तो फिर कल को जब आप ऐसा कुछ कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से उसको डिपिक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने आंखों के सामने एक लाइव एग्जाम्पल देखा है. एंड I feel like psychology again, when you talk to people, when you meet people, you understand their perspectives, you understand their problems. It could help you. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी ना, I think empathy quotient is very high. कोई सैड होता है ना तो मैं ऐसे बिल्कुल मेरा दिल सा टूटने लग जाता है और मैं उसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती हूँ कि हाय भगवान तेरा दिल टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है. बट ये मेरे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है, विच आई थिंक ऑल्सो मेक्स मी अ बेटर एक्टर, बट इट ऑल्सो लाइक इन माई पर्सनल रियल लाइफ इट्स अ लॉट ऑफ अ बर्डन टू डील विद. Good and bad of both the things. Hi Juvi, I'm also an actor. I'm doing theatre since 9 years. Oh, hi Jagrati. Nice to meet you. You're too honest. I am. I mean, झूठ बोल के क्या फायदा? I want some suggestions. Please check your DM. For now, you can message here if you want. I will do that. But guys, ये जगह इसीलिए बनाई है ताकि हम DM गेम ना खेलें और हम यहाँ पर बात कर पाए. Because honestly, बात बताऊँ, sometimes ना, you like for now also every question you've asked me, there is a 20-line answer to it. ठीक है, क्योंकि हर उस सवाल का एक प्री भी है. सिर्फ वो सवाल का आंसर मैं एक लाइन में दूं कैसे, मुझे नहीं समझ में आता है. सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई डोंट रिप्लाई ऑन DM, बिकॉज मैं उस चीज का जवाब कैसे एक लाइन में दूं, मुझे वो भी नहीं समझ में आता है. सो आई थिंक इट्स बेटर टू डू इट हियर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ बेटर. There are so many people on set, right? So it must be scary and nervous to act. Do people on set actually cooperate with you? Honestly, see, as an actor, आपकी बहुत इज्जत होती है यार सेट पे, बहुत ज्यादा इज्जत होती है. आपको सुपरस्टार टाइप ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर सेट अच्छा है तो, और अगर आप अच्छे इंसान हो तो, ऑनेस्टली. बट मुझे सेट पे डर इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि मैंने एज अ कोरियोग्राफर 8 साल सेट पे काम किया है, जहां हमने सेट चलाया है. मतलब जब आप गाना कोरियोग्राफ कर रहे हो तो द डायरेक्टर डजंट कम इन, द कोरियोग्राफर इज द डायरेक्टर, लाइक डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी इसलिए बोलते हैं, राइट? अनटिल अनलेस इट्स अ मोन्टाज. बट जहां हम गाने करते थे तो वो हम ही चला रहे थे सेट. तो सेट के 500 लोग हमारी आवाज पे चल रहे हैं. ऐसा ही था ऑनेस्टली, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स. लाइक आई वर्कड विद ऑलमोस्ट एवरीबडी. Vicky Kaushal, Amir Khan. Vicky Kaushal is my favorite. Ayushmann is my favorite. Amir Khan was very sweet. I've worked with Salman Khan. I've worked with Priyanka Chopra. I've worked with Janvi, Ananya, so many, Alia Bhatt, so many people. Like honestly, literally almost everybody. And so I like stopped being scared of on a set, like of being on a set. अब मुझे set घर जैसा लगता है. इसलिए मैं बोलती हूँ कि बैक एंड पे जब आप कुछ कर लेते हो, कुछ सीख लेते हो, आपको सेट की पहचान हो जाती है. आप फिर सेट पे जाओगे ना तो आप देख के समझ सकते हो, अच्छा ये लाइटिंग टीम है, अच्छा ये कैमरा टीम है, अच्छा ये स्पॉट आता है, अच्छा आपको सब समझ में आने लगता है और उस चीज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है सेट पे. सॉरी. Sometimes they only send voice notes and no scripts. Well, then you are in a pickle. 20 बार सुनो, सीन इमेजिन करो, सुन के भी सेम काम करना है. वो बोलेगा पहले ये समझो कि कहाँ है, लिख लो पेपर पे कि लोकेशन क्या है, टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खेल रहे हैं टाइप, है ना? कौन है साथ में, हु, वेयर, व्हाट, हाउ, ये वाले बेसिक 4-5 एंड व्हेन 5 क्वेश्चंस होते हैं. वो सुन के पहले लिखो, अपने आप समझ में आएगा कि वो क्या रहा है सीन में, फिर आगे बढ़ो. But from Delhi to Mumbai, only coming for ads, is it worth it? Again, same question. I will not answer one more time. I want to meet Mahima Makhwana for one time, and इसलिए मुझे एक्टिंग करनी है क्योंकि ऐसे वो मिलने नहीं चाहेंगे मुझसे क्योंकि एटीट्यूड और टाइम इश्यूज. मिस्टर अंशु, आई डोंट थिंक आप एक्टर बन पाएंगे. सॉरी, बीइंग वेरी ब्लंट. अगर किसी मोटिवेशन ये है कि मुझे किसी और से मिलने के लिए एक्टर बनना है तो आप इतनी प्रॉब्लम्स झेल ही नहीं पाएंगे. सच्चाई ये है क्योंकि ये आसान नहीं है. हाय, हेलो हेलो पलक.
मैम आपको मैंने डीएम किया है, यहाँ मैसेज कीजिए। यार ये क्या हो रहा है, सॉरी। यप, समथिंग्स हैपनिंग। आई डिड टीवी इन, सॉरी 1 सेकेंड, कहाँ निकल, ओ नो, ओ नो, मैं बहुत नीचे आ गई, ओ नो। या ओके, फाउंड इट। Glad we worked on the set of पल भर के लिए together. Great job with your content. Thank you, रोहित। मुझे इसमें आपकी फोटो नहीं दिख रही है, कौन सा कैरेक्टर किया था आपने? Did you do the guy who was serving us wine, or were you one of the guests on the table? But ma'am, this is not the only way to get there, right? Which way are you talking about? मैंने आज के इस लाइव में बहुत सारे तरीके बोल दिए हैं। अपॉइंटमेंट कितने मंथ बाद 1 शूट मिला था? क्या मतलब हुआ इसका? डू यू वांट टू आस्क कि मैंने कितने महीने ऑडिशन दिया था फिर मुझे पहला शूट मिला था? आई स्टिल रिमेम्बर जो मैंने फर्स्ट एयरटेल किया था वो तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये याद है कि आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गिव अप। तो 1 साल तो हो गया था। मैंने कहानी पिछली बार भी बताई थी आई थिंक, कि मैं 1+ का एक ऑडिशन देने गई थी, बट आई वॉज नॉट गोइंग बिकॉज इट हैड ऑलरेडी बीन 1 ईयर, और मुझे लग रहा था कि हर जो ऑडिशन में देती हूँ उसमें कोई तो सेलिब्रिटी होता है टीवी पे, तो मुझे नहीं करना है। और मेरी रूममेट जा रही थी तो मैं उनके साथ चली गई और मैं सिलेक्ट हो गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऑडिशन देने से ही काम मिलता है। आपको एक शूट कितने मंथ बाद मिला था? हाँ, लाइक ऑलमोस्ट ईयर आई थिंक, बिकॉज उसके पहले ऑडिशंस आते भी नहीं थे ना। लाइक तब ये वो टाइम है जब हम आराम नगर जाते थे, तो कोई एंटरटेन ही नहीं करता था अगर आप एकदम नए हो। एक एक्टर की शक्ल पे दिख जाता है कि वो एक्टर है, ऑनेस्टली आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाता है कि आपको काम आता है या नहीं, और लोग आपको फिट नॉट फिट करके निकाल देते थे। तो बहुत ज्यादा ऑडिशंस दिए भी नहीं थे आई थिंक, और मैं तब कोरियोग्राफी भी कर रही थी, तो मैं ऑन एंड ऑफ भी थी बहुत ज्यादा। सो दैट वाज आल्सो अनदर थिंग। मैम वी लव टू सी मोर ऑफ योर वर्क। ओके ओके, आई विल पोस्ट इट। क्या आप 2 मिनट चुप रह सकती हैं? नो ऑफेंस प्लीज। आप जा सकते हैं, ये लाइव लोग यहाँ सारे सिर्फ मुझसे बात करने आए हैं, मेरी बात सुनने आए हैं, तो मैं क्यों चुप रहूंगी? दोस्त आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू लीव दिस लाइफ। दीदी मैं नेक्स्ट मंडे दिल्ली आ रहा हूँ फॉर शूट, प्लीज विल यू गाइड मी? मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ, मैं तो बॉम्बे में हूँ। आई थिंक इट्स अ कंफ्यूजन। I'm also fresher. Any advice for me? Watch all the videos on the page. Ma'am, does height matter a lot? Yaar, what the hell, man? Ma'am, does height matter a lot in the industry to get there? Like I'm 5 feet, so I'm a little insecure. See, honestly, I'll tell you, one thing I've learned is, जितना अलग आप दिखते हो, उतना आपको ज़्यादा काम मिलता है. Honestly, if there's anything different about you, you get more work. आपके बाल अलग हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन अलग है, आप टैटूज हैं, आपके फीचर्स अलग हैं, आपकी हाइट अलग है. यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट प्लेस, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए जितना काम लिखा जा रहा है उससे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए काम लिखा जा रहा है. बट सब हील्स पहन लेते हैं यार, 2-4 इंच की हील पहन लो, नॉर्मल एवरेज हाइट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आर यू प्लानिंग टू डू मीट एंड ग्रीट इन रामनगर? नहीं यार, इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ अभी मैं कि मीट एंड ग्रीट करने के लिए तुम लोग को बुलाऊं. हेलो हाय मैम, डज योर हाइट मैटर इन ओटी? मैटर्स ओटी इन दिस इंडस्ट्री टू गेट देयर? जस्ट आंसर दैट. आई डिड टीवी इन 2018-2019 बट आफ्टर कोविड रिटर्न बैक एट उत्तराखंड, माई होम टाउन नाउ, एंड आई एम मिड हाउ टू स्टार्ट अगेन, हाउ टू बैक. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अब. ओके जागृति, ऑल्सो आई एम, सी आई विल टेल यू वन थिंग, it's difficult to start something after stopping it. मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, जिंदगी भर में 5 बजे 6 बजे उठी हूँ, अब मैं 8 बजे 9 बजे उठ रही हूँ पिछले 15-20 दिन से, क्योंकि पिक्चर बनाने के चक्कर में सब ऊपर नीचे हो गया था. और जो आप कर रहे थे वो कितना स्कैरी था वो उस टाइम पे नहीं रियलाइज होता है. When you come out of it, you realize कि oh my God, इतनी मेहनत थी. टीवी में तो बहुत मेहनत है, honestly. There is no time for yourself. So I understand that it is scary. The only way I think to get back to something is just to focus on how much joy it gave you. That is the only way to do it. And like I said,
कोविड के पहले सब ऑफलाइन होता था, तो यहाँ रहना ज़रूरी था उसके लिए। अभी सब ऑफलाइन नहीं है, अभी सब ऑनलाइन है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। डोंट हैव टू कम बैक टू बॉम्बे राइट नाउ टू स्टार्ट ओवर। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, यू कैन स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस फ्रॉम उत्तराखंड। एंड ऑनेस्टली एक बात बताऊं यार, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, मुकेश छाबरा एंड ऑल दीज पीपल, कास्टिंग कंपनीज, अगर आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो अब अलग अलग जगह पे जाके कास्टिंग करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उत्तराखंड में शायद कोई तो अभी कास्टिंग कर रहा है। एक बार सारे कास्टिंग के पेजेस चेक करो जिनके नाम मैंने पिछले लिस्ट में दिए थे। आई थिंक समबडी इज कास्टिंग इन उत्तराखंड राइट नाउ, जहां तक मुझे याद है। नहीं भी है तो ऑनलाइन बाकी के वो शेयर करो ऑडिशंस। थैंक यू मैम, मैंने आपको कमेंट किया था इट एंटरटेनमेंट फिल्म्स के बारे में, नहीं समझा। डू द मीडिया एक्चुअली मेक वीडियोज सपोर्टिंग सेलिब्रिटीज और इज इट ऑल जस्ट डन बाय द PR टीम, अदर नेचुरल वेज? यार मिक्स है यार, ऑनेस्टली हर चीज का मिक्स है। PR टीम्स, मीडिया के व्यूज बढ़ते हैं तुम्हारे बारे में कुछ डालने के लिए। एक्टर भी फेमस होता है, तुम्हारे बारे में कुछ डालते हैं, तो म्यूचुअल बेनिफिट पे चल रहा है सिस्टम। मैम मैंने आपको कमेंट किए थे एंटरटेनमेंट के बारे में, पढ़ा मैंने। ओके, और रूम मीट सेलेक्ट नहीं हुए? अथर्व, आई एम सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई हैव अ स्टेन ऑन माई लेफ्ट हैंड, सो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? या बर्निंग स्टैंड बहुत ज़्यादा ही पड़ा है मेरे हाथ में, प्लीज़ मुझे रिप्लाई देना दीजिए। ओके, फिल्टर लगा हुआ है, बंद ही कर देती हूँ, रुको। ये देखो, दिख रहा है मार्क? मुझे भी है, अभी बंद किया था तो देखा था असलियत में कैसी दिख रही थी मैं। टैटू है हाथ में, यहाँ पे एक दो जगह जले हुए के निशान हैं। Honestly saying, I know if you have a very big burn mark on your hand, आपको जिस तरीके के कैरेक्टर्स आप कर सकते हो वो लिमिट कर देगा। बट ऑनेस्टली आज के टाइम पे सब कुछ पोस्ट में क्लियर कर दिया जाता है। ये जो अंडर आई बैग्स हैं अभी नहीं दिख रहे, मैंने फिल्टर लगाया है, मैं बंद करूंगी तो पूरे दिखेंगे। सब क्लीन अप होता है। माधुरी दीक्षित का जो मैंने ऐड किया है, हम दोनों का शक्ल इतना ज्यादा क्लीन किया है उन्होंने कि एक तिनके का निशान भी नहीं दिख रहा है। इफ यू आर अ गुड एक्टर, नथिंग कैन स्टॉप यू। अपनी एक्टिंग पे फोकस करो, बाकी सारी चीजों को भूल जाओ। तुम एक्टर अच्छे हो तो लोग तरीका ढूंढेंगे तुम्हारे साथ काम करने का। हाय जायद खान, हेलो दीदी, मेरे हेयर अब लॉन्ग है तो लॉन्ग ही रखो यार, कम वर्क मिल जाता है, यूनिकनेस। यार ये सवाल क्या जवाब देने के लिए मैं इक्विप नहीं हूँ। मैम मैंने आपको कमेंट किया नहीं, मैम मैंने आपको कमेंट किया था कि IT एंटरटेनमेंट के बारे में, याद है 3000 मांग रहे हैं। किस चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं बेटा? अब जो किया था वो छोड़ दो, आप मुझे यहाँ लिखो कि प्रॉब्लम क्या है और किस चीज़ के आपसे पैसे मांग रहे हैं। थिएटर एक्टर या एक्टिंग क्लास? यार दोनों के फॉर्मेट्स बहुत अलग हैं, क्योंकि मैंने थिएटर भी किया है बहुत साल और मैंने एक्टिंग क्लासेस भी की हैं बहुत साल। थिएटर में मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक या तो आप काफी साल बिता दो, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्राई टू हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ। ठीक है, कि आप आवाज खोलो, आप ये एक्सरसाइजेस करो, मेमोरी करो, इमेजिनेशन, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। These happen in a span of, बच गई, नहीं कॉफी गिर गई। These happen in a span of years, है ना। एक्टिंग क्लास में मुझे ऐसे लगता है कि बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। एक्टिंग क्लास में सिर्फ एक्टिंग पे आपको फोकस करते हैं। थिएटर में आपको डायरेक्शन, लाइटिंग, म्यूजिक, स्टेज, टिकट्स, ये सब कुछ खुद हो रहा होता है। आप लकी हो अगर आपको सिर्फ एक्टिंग करने मिल जाए तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग क्लासेस जो आज के टाइम पे हैं वो एक अच्छा मीडियम है, अगर अच्छी क्लास है तो। बहुत ज़्यादा पैसे वाली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अच्छी क्लास है, रीजनेबल क्लास है, तो आप वहाँ जाओ। अलग अलग एक्टिंग ट्रेनर्स आते हैं, वो एक थिएटर के ट्रेनर्स नहीं है सिर्फ, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग मीडियम्स करा कर आ रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज है मिलने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों
बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों आपको अलग अलग चीज़ें सिखाती है and it gives you a different perspective. You can't choose one and let the other go, honestly. Wait for your main lead film role or work for in character roles for a while. यार ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने मुझसे. जब मैं आई थी 10 साल पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं वेट करूंगी, जब मिलेगा तब लीड रोल करूंगी, बट मैं वेट करूंगी. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बट मैं वो वेट करके कर क्या रही हूँ. किसी को पता थोड़ी है कि मैं हूं, क्योंकि मैं तो कोई ऑडिशन ही नहीं दे रही. लीड का ऑडिशन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा. 1,00,000 में से एक जन होगा शायद जो प्रॉबेबली बिल्कुल वैसा कैरेक्टर जैसा दिख रहा है, या पता नहीं कुछ बहुत ही आपने कमाल जिंदगी में कुछ एक कर दिया है, या एक एड किसी ने देख लिया और लगा कि नहीं यही मेरा कैरेक्टर है. दैट इज द ओनली सिनेरियो वेयर समवन विल ऑडिशन यू फॉर अ लीड विदाउट हैविंग एक्सपीरियंस. एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम डूइंग स्मॉलर थिंग्स. वो कॉल आप ले सकते हो कि मीनिंगफुल है या नहीं है. क्या मुझे ये, मैंने ऑनेस्टली वेब शोज में एक सेकंड मुझे पता नहीं था. गलती ये है. I did a character in Honey Bunny, which was there for 1 second. I was playing the mother character. It was casted from Mukesh Chabra sir. राजन डी के का शो था. मुझे था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आ रही हूँ या मैं नहीं आ रही हूँ कैमरे पे, वो रहेंगे सेट पे. दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू मी. सेकेंड, Citadel was a big name and Amazon Prime पे आ रहा था, which was another big name and was a web show and I wanted to be a part of the web show. और जो मुझे ऑडिशन में ब्रीफ दिया गया था जिसके बेसिस पे मैंने हाँ बोला था, because there was a back and forth, it was a mother character, I said no, they said requesting happened, talks happened. फिर जो कहानी बताई गई थी इवेंचुअली ऐसा कुछ भी नहीं आया, honestly, because they cut everything in the edit. It doesn't matter. सिर्फ वो करने की वजह से, क्योंकि मैं एक बार मुकेश छाबड़ा से किसी वेब शो के लिए लॉक हुई थी तो मुझे नेक्स्ट वेब शो का ऑडिशन आया. दिस इज द बेसिक सिनेरियो. तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ लीड रोल करूंगी. जस्ट डू. इफ द रोल और इफ देयर समथिंग टू गेन आउट ऑफ इट, जस्ट डू इट. वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खराब था क्योंकि राजन डी के सेट पे भी नहीं आए थे. Honestly, I think they were shooting somewhere else and the second unit was shooting this and I had only done it to meet them. So I was very disappointed. But it's a learning. You learn everything, like you learn new things from every instance that happens with you. Does height matter in this industry a lot? अरे नहीं यार. Honestly, एक काम करो, 20 एक्ट्रेसेस के नाम निकालो और उनकी हाइट चेक करो. इतने ज्यादा अलग अलग, मतलब there's a Kriti Sanon who's so tall. There are also really short actresses who are working very well in the industry right now. Does not matter. You carry yourself, be a great actor. Primary वो है, actor अच्छे बनो. I'm following you. Thank you. One more problem occurs for, say, the shoot is tomorrow or day after tomorrow. I feel scared to give audition from Delhi. Why not? Take a flight the next day. Budget अच्छा है तो दे दो. And most of the time, भाई क्या ही, most of the time एक दिन पहले ऑडिशन नहीं होते. Most of the time, क्योंकि they have to also cast an actor way before. उसके costume trials करने होते हैं. There's a direction team, there's a production team, then there's a client. बहुत कुछ होता है. बहुत मुश्किल है कि 1-2 दिन वाले auditions होते हैं until unless there's an emergency. तो chances बहुत कम है. मैंने आंसर दिया. मैं वापस ऊपर आ गई क्या? सॉरी. वापस ऊपर आ गई. Your work is commendable, appreciated. Thank you. Asked original ID क्या है मेरी? ये लाइफ ऑफ एन एक्टर खोलो, इसके बायो में मेंशन्ड है. ऑफिशियल जूही अरोरा. हाय हेलो, ठीक हो बेटा? गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू, शुक्रिया. ब्लेसिंग्स मैं हर जगह से ले लेती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. I am working on a movie project and will discuss with director for your profile, and if goes well, if all goes good, then kindly check your mail and DM. We'll share you the details later.
Thank you so much. Appreciate it. What about IT Entertainment Films? Arjun Rana sir and Vishal is casting director. They are saying to pay 3,000. Then they will give me a script and also tell me that how act and how to make expression. Don't do it. Don't do it. कोई भी कास्टिंग वाला अगर आपसे पैसे मांगता है ऑडिशन देने के लिए, मत करो. It's a big no. Don't do it. They are not supposed to ask money from you. Coordinators will ask you money. वो भी जब आपका काम हो जाएगा, जब आपको पेमेंट मिल जाएगी, तब आपसे अपना कट लेते हैं. कोई भी आपको काम देने के पहले अगर आपसे पैसे मांग रहा है, मत करो. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ स्टुपिडिटी. डोंट डू इट. डोंट डू इट. वो बहलाने फुसलाने के लिए ना करते हैं. अरे हम आपको आगे काम देंगे, हम आपको ज्यादा दिन का काम देंगे, आप बस ऑलमोस्ट लॉक हो चुके हो. ये सब बकवास है. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, दैट दिस इज द वे हाउ प्रोडक्शन आपको पागल बनाने की कोशिश करता है. जब आप इंडस्ट्री में रह लेते हो तो आपको समझ में आता है कि भैया मुझे पागल आप नहीं बना सकते. बिल्कुल पागल मत बनना, फंसना मत उनकी बातों में. अभी अभी ऑडिशन देके आ रहा हूँ मॉडल का. ऑडिशन देके आ रहे हो मॉडल का? क्या आपका कैरेक्टर मॉडल है? But he also says that you me only chosen for role. But how is it possible? Don't do it. मत फंसना, बिल्कुल पैसे मत देना. If they want you, they will want you without the money. Honestly मैं एक बात बताऊं, पैसे पे नेगोशिएट भी ऐसे होता है. जब कोई अगर कॉल करके आपको बोल रहा है ना कि आप ऑलमोस्ट लॉक हो गए हो, अगर कास्टिंग टीम ने, मतलब अगर डायरेक्शन ने, कास्टिंग टीम ने आपको बोला कि हम, प्रोडक्शन को बोला कि हमें ये एक्टर चाहिए, दे विल हैव टू गेट यू. मैं अगर मेरा बजट फॉर एग्जाम्पल किसी एड का बजट है 30,000 और मैं बोलती हूँ नहीं मैं 50 नहीं करूंगी, आप मेरी प्रोफाइल के साथ 50 लिख के भेज दो, ऑडिशन मैं दे देती हूँ. अगर ऑडिशन लॉक हो जाता है वहां से, तब मैं प्रोडक्शन से बात कर लूंगी. क्योंकि इफ दे वॉन्ट मी एज अ कैरेक्टर, 20,000 रुपए, करोड़ों के एड बनते हैं, 20,000 रुपए आर नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. Honestly saying. So 3,000 rupees is not going to make a difference. If they have to lock you, if the client likes you, if the director likes you, they will lock you. बहुत सारे फेक कास्टिंग ऑडिशन होते हैं. कैसे पता चलेगा ऑडिशन कौन सा है? There's another video about it. Go watch it. Can you tell the roadmap to the industry? I'm a student. Should I join theatre? यार इसका जवाब मैं काफी बार दे चुकी हूँ इस लाइफ में. एक रील बना दूंगी इसके बारे में. लुक टेस्ट में क्या क्या होता है. सो जब आपका लुक टेस्ट होता है, दे विल डू हेयर मेकअप अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न टाइप की लड़की है तो ऐसे बाल करेंगे, इंडियन बिल्कुल दीदी हैं तो ऐसे बाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे विल ट्राई डिफरेंट लुक्स एट यू. कॉस्ट्यूम, किस वर्ल्ड से आप आ रहे हो, किस जगह से आप आ रहे हो, आपका हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम सब कुछ होगा और उस लुक में आपका ऑडिशन करेंगे एक और बार. दैट इज कॉल्ड अ लुक टेस्ट. समटाइम्स दे ऑल्सो डू इट विद अदर कैरेक्टर्स कि ये लड़का और लड़की साथ में अच्छे लग रहे हैं क्या, अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो वो वाली चीज भी होती है. यस आई ऑल्सो थिंक कि अच्छे प्रोजेक्ट की कास्टिंग 1-2 दिन पहले नहीं होती. यस कैन यू टेल प्रोजेक्ट जिसमें आपने काम किया है, सब कुछ है प्रोफाइल पे. सवाल जवाब ज्यादा कर देते हैं. मुझे भी ऑडिशन देने हैं. अच्छा गाइज, अब आई हैव टू गो. How was your experience on the set of movie Cocktail? It was amazing. I had 20 days on a Maddox set with 2 directors on set. It was beautiful. I made a lot of friends. Acting का काम बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि हम टाइम पास ही कर रहे थे, क्योंकि शादी के सीक्वेंसेस शूट हो रहे थे तो पूरा दिन सुंदर बहुत लग रही थी भाई. हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम टीम ने कमाल कर दिया था. इससे ज्यादा हॉट मैं कभी नहीं लगी हूँ जिंदगी में, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है. It was a beautiful experience. Is it important to shift to Mumbai? Can I live in Noida and give auditions? Yes, you can. Online. I'm going to post this. You can watch it. दीदी कौन से कास्टिंग डायरेक्टर को मैं अप्रोच और मेरा ऑडिशन और इंट्रोडक्शन वीडियो भेज सकता हूँ? 2 वीडियोज हैं इस पे. गो वॉच इट. मैम हाइट इंपॉर्टेंट है, इसका बता चुकी हूँ. हाई आई एम इन दिल्ली. कैन यू नॉट रीलोकेट टू मुंबई? हाउ कैन आई फिगर आउट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम हियर? अगेन द आंसर्स हियर. आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस. यू कैन वॉच इट. मुझे ऑडिशन देने हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे? इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकती दोस्त मैं. मैंने बता दिया किसको देने हैं, मैंने बता दिया स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं, मैंने बता दिया प्रोफाइल कैसे शेयर करते हैं.
इससे ज्यादा मदद तो मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा आपकी, आपको करनी पड़ेगी अपनी मदद। सॉरी मैम, क्या किसी का फेस देखकर कास्ट किया जाता है? ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने सुंदर हो या नहीं सुंदर हो, या गोरे हो या काले हो, नहीं। हर एक इंसान जब एक स्क्रिप्ट लिखता है, कोई भी डायरेक्टर जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो अपने दिमाग में उस कैरेक्टर को इमेजिन करता है, एक पिक्चर इमेजिन करता है कि अगर कहानी से कानपुर की है तो एक सर्टन लड़की इमेजिन की है, अगर कहानी पंजाब की है तो एक सर्टन लड़की, अगर कश्मीर की है तो एक अलग लुक की लड़की है। वो लुक आपसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज वेयर द लुक्स come into the picture and that is where they are important. But no matter, honestly saying कि गोरे काले लंबे छोटे, छोटे बाल बड़े बाल, ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी बेस्ट लुक पे हो, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं, राइट? अगर आप अपना बेस्ट दिख रहे हो, that is all that matters. If I look shabby right now, doesn't matter if I'm gora kala whatever, I need to look presentable, I need to look like an actor, I need to look like I can dress like the character. वो important है. Did दीदी उर्वशी सान्याल को आप कैसे जानते हो? She's my friend. You are beautiful. Thank you. अगर कोई पतला है तो उसको मैम शाहिद कपूर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था. I'm from Pune. Please let me know any auditions are there. Also willing to travel to Mumbai. I'm not a casting person, guys. I know बहुत सारे लोग को शायद ये मिसकंसेप्शन है कि मैं भी कास्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं इतना बात करती हूँ कास्टिंग के बारे में, बट मैं कास्टिंग नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ कि कास्टिंग वालों को कैसे अप्रोच करें. What about casting by Vidhu? I don't think he's a genuine person, क्योंकि I mean वैसे मेरी बात हुई है एक दो बार आई थिंक मिस्ट्रेस पे, बट जितना मैंने उसका प्रोफाइल देखा है, मैंने नहीं देखा कि कुछ भी वर्थवाइल काम दिलाया है किसी को. और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कास्टिंग वाला कि आप उनको फॉलो करेंगे एक साल, उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे तब वो आपको काम देगा, तो देर अ गुड कास्टिंग पर्सन. दे आर नॉट. आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. हैव यू टेकन एनी हेयर ट्रीटमेंट? नो. ओके, थैंक यू मैम. एंड मैम, कभी कभी बोला जाता है कि अनफिट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप कैरेक्टर से नहीं मैच करें, आप उस कैरेक्टर के लिए अनफिट है जो उनके दिमाग में है. फॉर एग्जाम्पल, भूमि पेडनेकर की जो फर्स्ट फिल्म थी जिसमें उनको एक हेल्दी कैरेक्टर दिखाया गया है, मुझे तो उसके लिए अनफिट ही बोलेंगे ना, क्योंकि मैं नहीं मैच करी हूँ. ऐसे ही कोई एक्सट्रीमली थिन लड़की है, उसमें इफ यू आर लिटिल चबी आपको अनफिट बोला जाएगा. सिंपल. मैम, ओके गाइज, नाउ आई नीड टू गो. ओके, लास्ट वन. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लाइव. बाप रे, 1.5 घंटा हो चुका है. आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिला. आई होप इट मेड सेंस टू यू. ऑल योर क्वेश्चंस जिनका मैं अभी जवाब नहीं दे पाई हूँ, वो सब पहले की लाइव में है. आई एम गोइंग टू रीपोस्ट दिस ऑन द पेज सो यू कैन वॉच इट आराम से एंड गो थ्रू द आंसर्स एज वेल. ओके, दीदी भूलना. Okay. Okay, bye guys. Thank you. See you.